Welcome students, how are you? Yesterday we studied about Boyle's law and today we are going to study about Charles' law, right? In Charles' law we are going to study two variables that are temperature and volume. और जो दो चीज़ें हम constant रखेंगे that will be the mass of the gas and pressure of the gas. So this law says that the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature when the pressure is kept constant. So the pressure is constant and the mass of gas is constant, but the volume is directly proportional to temperature. इट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. एज यू कैन सी इन दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू दिस वन, v इज इक्वल टू के टी. क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई है और हमने क्या किया है, इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करवाई है, तो हमने कांस्टेंट लगाया v इज इक्वल टू के बाई टी. टी वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इस साइड पे इसको लेके आऊँगी तो वो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाई टी इज इक्वल टू के. हमारे पास ये इक्वेशन बनी. इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को जब भी मैं डिवाइड करूँगी डिफरेंट कंडीशंस पे तो मेरे पास हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी. ठीक है. एट कंडीशन 1 जैसे v1 ओवर t1 हो जाएगा, एट कंडीशन 2 v2 ओवर t2 हो जाएगा. दे बोथ विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, राइट. अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक एनिमेशन दिखाती हूँ इस लॉ की. हेयर इट इज़. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे से हीट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और जो मास ऑफ गैस है वो भी क्या है, कांस्टेंट है. यहाँ पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है v ओवर t का, जो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है. कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, यूजली ऑरिजिन. ठीक है. तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का हमने जो ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई बिकॉज दे वर बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट. कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, here it is. If your temperature is changed from T1 to T2 and the volume changes from V1 to V2, then first equation will be V1 over T1 is equal to K and the second will be V2 over T2 is equal to K. As both of them are equal to K, it means both of them will be equal to themselves. V1 over T1 is equal to V2 over T2. Alright. Coming to the experimental verification of Charles' law, here you can see two cylinders. They have movable piston on them. In the first cylinder, the temperature is T1 and the volume is V1, right? The equation बनेगी V1 over T1 is equal to K. But in second cylinder, we have heated this and the temperature now changes from T1 to T2. Definitely the volume will be increased because we know according to Charles' law, when the temperature increases, the volume also increases. So the temperature has been increased from T1 to T2 and the volume has been increased from V1 to V2. The second equation will be V2 over T2 is equal to K. As both of them are equal to K, इसका मतलब आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. V1 over T1 is equal to V2 over T2. It means हमारा जो Boyle's law है वो क्या है, वेरीफाई हो चुका है. Now coming to the example, it says 250 centimeter cube of hydrogen is cooled from 127 degrees centigrade to minus 27 degrees centigrade. Cooled from, first क्या है temperature, T1 minus 127 and T2 is minus 27, by maintaining the pressure constant. Calculate the new volume of the gas. First volume has been given, which is 250 centimeter cube, which is V1. You have to calculate V2. Remember, in Charles' law, we convert the temperature from centigrade to Kelvin scale. उसमें convert करने के लिए हम इसमें 273 add करते हैं. So here you can see I have added 273 to 127. हमारा जो temperature था वो convert हो गया Kelvin में. It is 400 Kelvin. Again minus 227 degree centigrade. मैंने 273 Kelvin add किए. Answer आया 246 Kelvin, which is the टेम्परेचर इन केल्विन. अब मैं जो अपना इक्वेशन है वो प्लॉट करूँगी. V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2. मैंने कैलकुलेट करना है V2, तो मैं V2 को एक साइड पे करके T2, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है
तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वो क्या है, इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम हमारे पास था सेंटीमीटर क्यूब में, बट वी हैव टू टेक द वॉल्यूम इन cubic decimeter or decimeter cube. For that we will divide the volume in centimeter cube by 1000 से हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 0.25 decimeter cube because this is the unit we have to use of the volume. तो मैंने सारी वैल्यूज़ प्लॉट कर ली, सारी वैल्यूज़ पुट करके जो मेरे पास आंसर आया वो था 153 centimeter cube, right? Okay. So by decreasing the temperature, as you know in the equation, the temperature was decreased from 127 to -27. तो वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब से डिक्रीज होके आ गया 150 सेंटीमीटर क्यूब पे. नाउ कमिंग टू डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो. अच्छा, हमारे पास कैसे पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और कितना वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें. फॉर दैट वी विल डिराइव द एब्सोल्यूट ज़ीरो. अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है देन द वॉल्यूम विल इंक्रीज़ बाय 1/273 or decrease by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree rise or fall in temperature. दोबारा से सुने, मेरे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम का मतलब है जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको मैंने क्या कह दिया, ओरिजिनल वॉल्यूम. अब अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा करती हूँ तो मेरे पास कितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वो ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273 फैक्टर के बराबर होगा. यानी कि अगर मैं ओरिजिनल वॉल्यूम को 2/273 से डिवाइड करूँ तो जो वैल्यू आएगी उतना हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा कर रही हूँ, और उतना ही मेरा वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा अगर मैं अपना टेम्परेचर कम कर रही हूँ 1 डिग्री. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पे अगर वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 546 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, दिस इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम. अब अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, सही है, तो मैं कहती हूँ कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. अब वो हमने पढ़ा कि वो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम. 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम का मतलब है ओरिजिनल वॉल्यूम से 2/273 को डिवाइड कर दें, तो वो होगा 546 डिवाइडेड बाय 273. तो आंसर आया 2 सेंटीमीटर क्यूब. इट मीन्स फॉर एवरी 1 डिग्री राइज 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम विल इंक्रीज, and for every 1 degree fall 273 cubic centimeter cube volume will decrease. यहाँ तक बात समझ आई. सो अगर मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम था 546 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अभी हमने पढ़ा 2 डिग्री क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज़ होगा बाय इंक्रीजिंग 1 डिग्री. तो अगर मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देती हूँ तो वॉल्यूम हो जाएगा 546 + 2 सेंटीमीटर क्यूब विच विल बी 548 सेंटीमीटर क्यूब. अब आपको बात समझ आई. इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर 0 से 10 तक ले जाती हूँ टेम्परेचर को, तो मेरे पास वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, 10 × 2 20, 546 + 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 566 सेंटीमीटर क्यूब. अब आपको समझ आई है ये बात. अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे. अच्छा, पहले ये देख लेंगे इक्वेशन. Vt is equal to V0 plus into 1 plus T/273. Vt is the volume जो भी टेम्परेचर पे आप ले रहे हैं, समझो 100 पे ले रहे हैं, 10 डिग्री पे, 25 डिग्री के सेंटीग्रेड पे, वो वॉल्यूम जो आप किसी भी टेम्परेचर पे ले रहे हैं वो Vt है. V0 is the volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वॉल्यूम है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है. Into 1 is constant plus T. T is that temperature on which you are studying the volume. जिस ये Vt आपने किस वॉल्यूम पे, किस टेम्परेचर पे लिया था, वो टेम्परेचर आपने यहाँ पुट कर देना है. अगर मैंने ये Vt लिया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इस T की जगह मैं पुट करूँगी 25 और उसको 273 से डिवाइड कर दूँगी. सो दिस इज़ द फार्मूला विच इज़ यूज टू डिराइव द वॉल्यूम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, राइट.
ओके यहाँ पे अब वही बात एक्सप्लेन की हुई है कि अगर आप गैस को 1 डिग्री ज़्यादा करते हो, इट विल इंक्रीज 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, और वो 1/273 कितना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब. सो फॉर एवरी 1 डिग्री राइज 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम विल इंक्रीज, एंड फॉर एवरी 1 डिग्री फॉल 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम विल डिक्रीज, राइट. अच्छा, अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी चार्ल्स लॉ में, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. मैंने अभी आपको कहा था कि अगर मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम है कितना, 546 सेंटीमीटर क्यूब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाती हूँ 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, फॉर एवरी 1 डिग्री 2 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है, तो 10 डिग्री बढ़ा रही हूँ तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा. सो मेरा वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, वो होगा 566 सेंटीमीटर क्यूब. सो फर्स्ट इक्वेशन देखिए जो हमने स्टडी की, टेम्परेचर था 10 तो वॉल्यूम हमारा कितना था 566. ठीक है, ये V1/T1. ओके, कमिंग टू सेकेंड इक्वेशन जो है 100 पे, अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 1 डिग्री के लिए 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो 100 के लिए कितना होगा, 100 इंटू 2 विच इज़ 200 सेंटीमीटर क्यूब. सो 200 सेंटीमीटर क्यूब आप ऐड करो ओरिजिनल वॉल्यूम में 546 जो कि है, तो आंसर आएगा 746. सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम हो गया 746. लेकिन ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, क्योंकि 566 divided by 10 is equal to 56.6 and 746 divided by 100 is equal to 7.46. It means both sides are not equal. इसका मतलब है हमारा चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा यहाँ पे. सो कोई तो मसला है जिसकी वजह से हमारा चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा. वी हैव टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम. दैट प्रॉब्लम इज विद द टेम्परेचर. बेसिकली चार्ल्स लॉ डू नॉट ओबे द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे हम टेम्परेचर लेते हैं केल्विन स्केल में. सो बेसिकली केल्विन स्केल क्या है, केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम -273 डिग्री सेंटीग्रेड. -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 केल्विन. ठीक है, वहाँ से हमारा केल्विन स्केल स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो. Absolute zero is basically 0 Kelvin, which is equal to -273 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, दिस वन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर केल्विन में कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. जब यहाँ पे सेंटीग्रेड में 0 है तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा 273 केल्विन टेम्परेचर, राइट. तो अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम और ये वाला टेम्परेचर कंसिडर करना है. जब हम इन दोनों को वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कांस्टेंट आएगा. इस टेम्परेचर स्केल को हमारा लॉ फॉलो नहीं करता. अब आप यहाँ पे देख लो कि आपके पास ओके हमने पहले लिया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, रिमेंबर ऊपर जब हमने चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने की कोशिश की थी. 0 का मतलब है 273 केल्विन और 100 का मतलब है 373 केल्विन. वॉल्यूम तो वही रहेगा 746 और 546. सो अभी आप यहाँ पे देखें दिस वन, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. 566 जो कि हमारे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, 10 + 273 हो गया 283 केल्विन, और V2 हमारा 746 जो कि था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसका हमारे पास 100 + 273 हो जाएगा 373 केल्विन. अब मैं अगर दोनों को इक्वेट करूं तो आंसर आता है 2. इट मीन्स आवर चार्ल्स लॉ हैज़ बीन वेरीफाइड, क्योंकि हमने टेम्परेचर यूज़ किया था केल्विन में. कमिंग टू द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. जब हम चार्ल्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अभी हमने बात की थी कि स्ट्रेट लाइन आती है. वाई एक्सेस पे मैंने वॉल्यूम लिया है, एक्स एक्सेस पे टेम्परेचर लिया है, तो स्ट्रेट लाइन आई मेरे पास. दैट स्ट्रेट लाइन अगर हम, अब ग्राफ तो वैसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाते हैं ना, तो बेसिकली इस लाइन तक आना चाहिए था, ठीक है. लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि ये ओरिजिन पे स्टार्ट नहीं हो रही थी. अब ये देखो, ये लाइन ओरिजिन पे स्टार्ट नहीं हो रही, ओरिजिन यहाँ पे है, दिस पॉइंट 0 इज़ नोन एज ओरिजिन. ये लाइन कहीं ऊपर जाके समथिंग 346 से ऊपर और 546 से नीचे स्टार्ट हो रही है, सही है. तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये 0 पे अगर हो हमारा वॉल्यूम, तब कितना आंसर होगा टेम्परेचर का. तो हम इसको एक्स्ट्राप्लेट करते हैं. एक्स्ट्राप्लेट करते करते हमने इसको
एक्स एक्सिस की 0 तक ले आए, मतलब हमने इसको 0 तक, जहाँ पे वॉल्यूम 0 था वहाँ हम इसको ले आए हैं, और वहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर एक्सिस पे ये टच कर रही है लाइन, वहाँ पे वॉल्यूम 0 है। आप देखो इस पॉइंट पे वॉल्यूम तो 0 है ना, ठीक है, ये वॉल्यूम वाली लाइन यहाँ पे टच कर रही है, वहाँ पे वॉल्यूम 0 है, बट द टेम्परेचर इज़ -273.16 इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर हमारा वॉल्यूम 0 होगा तो टेम्परेचर कितना होगा, -273.16। लेकिन आप सोचें किसी भी रियल गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है? नहीं, वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये जो -273.16 टेम्परेचर है ये भी अचीव नहीं हो सकता। बेसिकली इट इज़ द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को अचीव करने से पहले पहले सारी गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो ये टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। सो बेसिकली दिस इज़ द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर विच इज़ -273.16. इट विल बी अचीव्ड ओनली व्हेन द वॉल्यूम बिकम्स 0, राइट। सो हमने देखा कि हमने डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय हमने किस में स्टडी करना है, चार्ल्स लॉ को, केल्विन में। और ये जो आपके पास लाइन है, ये लाइन ये डिपेंड करती है, इसकी जो स्टीपनेस है या जिसकी स्लोप है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ मोल्स पे। जितने नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होते जाएंगे ये लाइन क्या है और ज़्यादा स्टीप होती जाएगी, या उसकी स्लोप और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो अभी हमने क्या कहा कि अगर हमारा वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि देखो हमने कहा था कि टेम्परेचर जितना कम होगा वॉल्यूम उतना कम होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। सो टेम्परेचर कितना कम होगा तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, दैट इज़ -273। सो -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड, क्योंकि उस पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन क्योंकि किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, रियल गैस का, इसका मतलब है ये टेम्परेचर अचीव नहीं हो सकता। बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।